I, C. Gyati Gupta, a practicing chartered accountant from Meerut, wholeheartedly welcome you all to the next episode of E-Pathshala. It's an initiative which is taken by Sikasa and the Knowledge Series for students. Today's episode is centered around problem-solving skills and time management, and we have C. Richa ji joining from Gwalior today to deliberate on this topic. Problem-solving skills enable critical thinking, innovation, and adaptability, allowing individuals to tackle challenges confidently. And on the other hand, time management enhances productivity, it reduces stress, and ensures that deadlines are met. It leads to balanced and successful life. And together, these two skills foster effective decision making and goal achievement. We have hosted a couple of programs under ePathshala in the last 2 months, and they've certainly benefited a number of students of many cities. So moving ahead, let me introduce. Yes. So, गुड इवनिंग ज्योति जी, गुड इवनिंग ऋचा जी। good evening, sir. मेरी वॉइस So- आ रही है आपको? सॉरी फॉर हाँ डिले जी। ज्वाइनिंग। मैं बस ऑफिस ही पहुंच रहा था तो एकदम थोड़ा लेट हो गया ऑन द वे। Sir, you are just on time. नमस्कार। Just on time. नमस्कार ऋचा जी, कैसे नमस्कार आप? सर, आई एम गुड सर, हाउ आर यू? बस बढ़िया। आपको सुनने का आज मौका मिलेगा हमें, हमारे हाँ जी। स्टूडेंट को। और क्योंकि एग्जाम नियर बाय पास आ रहे हैं तो आई थिंक सपोज टू बी कि स्टूडेंट आर लेट ज्वाइनिंग, बट वी हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर. I request to our CRC team kindly record this lecture and circulate to the student group. ठीक है, on Monday. So we have the Nikhil Kumar ji also from Aligarh branch, dedicated हमारे member और बहुत ही अच्छे academic part से भी भाई साहब का हमने देखी है वर्किंग। तो निखिल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर नमस्ते, हेलो एवरीवन। हेलो। और हमारी इस प्रोग्राम के आज के मॉडरेटर ज्ञाति गुप्ता जी जो इसको आगे चलाएगी, तो मैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ज्ञाति जी आप कंटिन्यू कीजिए, आई एम विद यू। Okay, sir. Thank you, sir. So moving ahead, let me introduce our young and dynamic speaker to you, C. Richa Mandalia ji, who hails from Gwalior, and she's a qualified chartered accountant. She cleared her CA in May 2022, and she was the city topper for CA entrance exam, that is CPT, Common Proficiency Test, for which she received Outstanding Achievement Award from Maharaja College and ICAI Gwalior branch, respectively. She graduated in 2018 with Bachelor of Commerce and further completed her LLB to get expertise in law. She was a treasurer and secretary for Sikasa for the year 2018 and 19 respectively. She started her career in working one of the big four firms dealing in accountancy and auditing, namely PwC, and she is currently working in one of the big six leading firms of finance and auditing, that is Grant Thornton, known as GT. She is also empaneled as a faculty of ICAI for public speaking skills and personality development, and she is acting as a career counselor for ICAI for the last 1 year with ICAI. She is highly involved in social activities, being engaged with Food for Needy organization and various charitable associations. So with these words, I welcome Richa ji to please take over the session further. Thank you so much, Gyati ji. As I'm audible to everyone. Yes, yes. Thank you so much. यस। A very good evening to all of you. First of all, I would like to thank all the respected members of CIRC of ICI committee who have given me this opportunity to take this session on the topic problem solving skills and time management. Then I want to give the special thanks to CA Rajiv Gupta ji, chairman of Sikasa of CIRC of ICAI, for giving me this again the golden opportunity to interact with the students on their issues and answering their questions. Thank you so much, sir. So I'm starting my session. As you all know, that today's topic is problem solving skills and time management. So let me take you with this forward. Is my screen is visible to everyone? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So let me start with the problem solving skills. So before going into the topic, we need to understand that what is the problem? Problem hoti kya hai? The problem, it is a kind of a situation that needs to be dealt with. एक ऐसी situation जिसे हमें deal करना है, that is known as the term problem. We have some 5 to 4 steps which we will identify what are the steps of problem solving. Ki exactly how we can solve our problem. So we have these 5 steps. First of all, हमको problem को identify करना है कि हमारी problem है क्या.
once your problem is being identified, then you have to analyze the problem. आपको उसको एनालाइज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के उसको डीपली स्टडी करना है. देन द थर्ड इज प्लान डेवलपमेंट. वंस द प्रॉब्लम इज एनालाइज, आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है कि अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू मेक अ पाथ, you have to make a pathway, you have to make a full plan for that. Then fourth we have plan implementation. सिर्फ प्लान बना लेने मात्र से कि ठीक है ये हमारी प्रॉब्लम्स है, इसको हम सॉल्व करना है, it will no, it's of no use, it won't work. आपका रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जब अप्लाई होगा तब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. When you will implement your plan which you have made to solve that problem, then only your problem will get resolved. And last we have the plan evaluation, कि जो हमने प्लान बनाया, जिसको इम्प्लीमेंट किया, क्या वो वाकई इतना काबिल है कि वो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाया. So these are the 5 steps जिनको हम थोड़ा डीप में समझेंगे to solve a particular problem. Any problem related to our study, related to our exam solving questions, related to our daily life, related to our business, anything. Got it? I'm not able to get the response from the students if anyone is watching, because I just want it will be an interactive session. You may ask the question and I am ready to answer all of the questions. So if any student or anyone is watching, then he or she can answer me. So are you getting what I'm saying? Anyone? Gyati ma'am, how many students are watching? Can you please tell me? Hello? Gyati ma'am, are you there? Hello? Rajiv ji, anyone is there who can answer me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, how many students are watching, sir? Ma'am, right now तो अभी 11 है. Sorry, 11. And जो हमारा लाइव स्ट्रीम चलता है उस पे भी है. Okay, so can they answer me? I'm asking them any Yes, question. yes. I think nobody's answering and I can't see like how many are watching, so that's why. Ma'am, many of the students will question in the last of the session. Okay. Okay, so I'm just going ahead with my session. So first step is define the problem. जब हम अपने first step पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हम problem को define कैसे करें. What is exactly the problem? So we have the 3 steps. That is, पहले आप अपनी problem को state कीजिए कि what your problem is. Then you have to detect the circumstances which leads to the incidence of problem. Means कि ऐसे क्या incidences, ऐसे क्या circumstances develop हुए कि हम इस problem में आए. That is the root causes of your problem. And in the third phase, you have to write a clear definition of your problem with the barriers you encountered to reach to the resolution. तो आपको वो barriers note down करने पड़ेंगे. So in these 3 particular steps, you will define your problem, what my exact problem is and to what it relates to. Got it. So in the last, I will ask you the questions like how do you dealt with your problems? What are your ways of defining the problems? That I'll ask you all in the last. Exactly. So I'm moving the forward. Second is finding the possible solutions. So once your problem is defined, तो आप जब अपनी एक बार आपको परेशानी हमें एनालाइज हो जाती है कि ठीक है ये मेरा एक की एरर है, या आई एम हैविंग द प्रॉब्लम्स इन राइटिंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, आई एम गेटिंग द शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या आई एम नॉट एबल टू लर्न द थ्योरीज, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो हमें उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे. एट द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू फाइंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशंस. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, analyze the problem so you fully understand it and develop the ideas to achieve your goal. तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसके बाद अपने इंटेलेक्चुअल में यू हैव टू डेवलप द आइडियाज कि अच्छा अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कितने टाइम में रिजॉल्व कर लूंगा. जस्ट यू आर डेवलपिंग द आइडियाज टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम.
कि व्हाट आर द वेज मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करके याद कर सकता हूँ। तो आई कैन गो विद द हिस्ट्री वर्क पेपर्स, मैं वो देख सकता हूँ कि कैसे पेपर्स आए थे, हिस्ट्री पेपर्स देख सकता हूँ, क्वेश्चंस को रिपीटेटिवली सॉल्व कर सकता हूँ. सो दीज आर द वेज you get into that and you take out the solution. So you are just thinking of the different possible ways. Then second point mein, you can develop again the several ideas to resolve the problem, to increase your chances of including the best solution to the problem. What does it mean? आप कुछ आइडियाज भी ढूंढ सकते हो जिससे कि आपके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुंचने की संभावना ज्यादा हो. मतलब हमारे दिमाग में सॉल्यूशंस तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, उसके हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस देख लिए, बट उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उस तक हमें लास्ट में पहुंचना रहेगा. जैसे कि जो आगे के स्टेप्स में हमको देखने को मिलेगा कि वी हैव टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. So while developing those ideas, your chances of reaching to that best possible solution increased. जब आप अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को एनालाइज करते हो तो आप उस पॉइंट पे पहुंचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते, उस ऑल्टरनेटिव पे पहुंचने की जो चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते. आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस सेशन इज बेसिकली कंडक्टेड टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, जिससे कि मैं उनको एनालाइज करके आई कैन सजेस्ट यू द सॉल्यूशन, आई कैन सजेस्ट यू द वेज. इफ यू फेस एनी challenges during the exams or you feel any hurdle during the studies, you're not able to write the answers, you're not able to learn the things, so I am here to address all of those and telling you the tips to resolve those as well. So I'm just moving ahead with the next slide and we will take the question answers in the last. So third slide, I hope it is visible to everyone. Is it visible, third slide? Yes. Okay, fine. So my third slide says about choose the best solution. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम आइडियाज डेवलप करेंगे, जब हम थॉट्स डेवलप करेंगे, तो एक थॉट नहीं आएगा, काफी सारे थॉट्स आएंगे. अगर हमें कोई चीज याद नहीं हो रही है, वी आर नॉट एबल टू लर्न एनी क्वेश्चन, या कोई थ्योरी हमको याद नहीं हो रही है, तो वी विल डिसाइड कि यार ये ऑडिट और लॉ का आंसर याद नहीं हो रहा है, तो यू विल आस्क योरसेल्फ द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड यू विल फाइंड कि कई सॉल्यूशंस निकल के आएंगे. जैसे कि यू कैन ईट द आलमंड्स टू इंक्रीज योर मेमोरी, दैट्स one of the option, and you can wake up early, you can roam here and there and then you can revise, you can write the things, whatever you are learning you can write the things. One of the best techniques which I suggest you personally, I got very good marks in the law, so what I adapted is I just took a view of whole of the question and its answer, कि ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखा, यही हमारा आंसर है. I just took out the keywords from that and then I closed my eyes and I started making my own answer out of using those keywords, not using the exact language, but मैंने उसको सोचा, उसको समझा और अपनी लैंग्वेज में मैंने उसे लिखा. फिर मैंने देखा कि कितने keywords मैं अपने क्वेश्चन आंसर में कवर कर पा रही हूँ. That is the main role, because ICI always wants those keywords which they gave you in the study material. They want those keywords in their answers. तो हमको वो चेक करना है. तो थर्ड हमारा स्टेप कहता है कि हमको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लेना है, और ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन कैसा है. कैसे लेंगे डिसीजन? जब हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो सबसे अच्छा वे है डिसीजन लेने का कि हम सारे अवेलेबल ऑप्शंस को कंपेयर करें कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है. क्या मेरे लिए लिख के याद करने का ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि मैं कीवर्ड्स को नोट डाउन करके लिखूं, या मैं अपने माइंड में उसको एनालाइज करके उनको ग्रास्प करके उनको रिकॉल करूं, या एक ही टॉपिक को मैं ज्यादा देखूं, या फिर मैं एक लिस्ट बना लूं मोस्ट प्रेफरेबल and less preferable, and by doing that classification मैं उनको learn करूं. So it totally depends upon you how you make your decision. It's a total decision making concept. आपको best possible solution निकालना है अपनी problem को solve करने का.
आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अगर हमको चूज करना है तो हमको कुछ स्टेप्स जाने पड़ेंगे. पहले हमें अपने सॉल्यूशन के सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या पार्ट्स बन रहे हैं हमारा बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के. सेकंड, अगर कोई सॉल्यूशन हमें दिख रहा है कि नहीं नहीं ये हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएगा, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फिट नहीं बैठेगा, तो हमको उसको एलिमिनेट कर देना, हमको उस सॉल्यूशन को हटा देना. थर्ड, इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशंस अगेंस्ट द डिजायर्ड आउटकम. हम चाहते थे जो आउटकम हमें मिले उसके अगेंस्ट जा रहा है कोई सॉल्यूशन, तो उसको हटा दो. अगर हम चाहते थे कि ठीक है मैं एक स्टॉप वॉच लेके बैठूंगा और मैं अपने आंसर को रिकॉर्ड करूंगा मैं कितनी देर में लिख पा रहा हूँ, एक सॉल्यूशन ये मैंने अपने दिमाग में निकाला. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. मैं स्टॉप वॉच लेके बैठी या बैठा, मैंने कोशिश करा कि ठीक है मैं लॉ के एग्जाम में पेपर में मैं इसको जल्दी से जल्द लिखने का ट्राई करूँ. बट अगर वो मुझे गलती से अफेक्ट कर गया, अफेक्ट इन द सेंस इधर वो मेरी क्वालिटी ऑफ आंसर को डिग्रेड कर रहा है, या वो मेरे मोटिवेशन को लो कर रहा है, या मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा रहा है, तो मैं उस सॉल्यूशन से हट जाऊंगी. नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगी या उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी कि नहीं दिस पॉसिबल सॉल्यूशन आई नीड टू एलिमिनेट, आई नीड टू फोकस ऑन माई क्वालिटी आंसर. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क कि नहीं ठीक है मेरे से अभी नहीं हो रहा है, I'll give time to me, I will increase my speed but along with efficiency. So ऐसे possible solutions जो आपको desired outcome ले जा रहे हैं आपको उसको eliminate कर दें. Then assessing the risk associated with the best solution. जो भी आप best solution चुनेंगे उसके संग आपको risk देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी risk इसके संग associated है. Like अगर मैं ज्यादा टाइम लॉ में दे रहा हूँ, मैंने ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि मैं ज्यादा टाइम अपने लॉ या ऑडिट सब्जेक्ट को दूंगा, तो उसके संग रिस्क है कि आप अदर सब्जेक्ट्स को कम टाइम दे रहे हो, तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको वो बैलेंस करना आना चाहिए. तो दीज आर द रिस्क विच कैन बी एसोसिएटेड विद योर रिस्क. लास्ट इज मेकिंग अ डिसीजन. आपको एक ठोस एक दृढ़ डिसीजन बनाना है और अपने सॉल्यूशन को उसमें इम्प्लीमेंट करना है. दीज आर द स्टेप्स कि आप कैसे बेस्ट सॉल्यूशन को चुनेंगे. नेक्स्ट इज आपने सॉल्यूशन निकाला, पर जैसा कि मैंने बोला निकालने मात्र से आपका काम खत्म नहीं होता है, तो आपको उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. तो आपको उसको एक्सेप्ट करके you have to follow that and you have to carrying out the chosen course of action. जो आपने अपना कोर्स ऑफ एक्शन, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी सॉल्यूशंस बनाए हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्टिंग ऑन द चूजन सॉल्यूशन. इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपने स्कूल टाइम में भी देखते थे कि हम टाइम टेबल्स बना लेते थे, पेस्ट कर लेते थे दीवार पे, हम इतनी सुबह उठेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे. और काफी सीए के बच्चे आज भी ये करते हैं, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं. बट एग्जैक्टली वो काम तब करेंगे जब आप उन चीजों को फॉलो करोगे. until unless you're not going to follow them, you are not implementing your solutions. आप अपनी strategies, अपनी critical thinking process को आप उसको progression ही नहीं दे रहे हो. आपको अपने efforts को दिखाना पड़ेगा. And for that, you need to have an implementation of your system, your timetable, whatever you have done for yourself. Got it? So I think सबको समझ में आ रहा होगा. एंड अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है तो जस्ट नोट इट डाउन, मेरे साथ साथ में स्लाइड्स के साथ में ही आप लोग नोट कर लें, जिससे कि लेटर ऑन यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनी क्वेश्चन. कोई भी अगर क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप उसको भूलें ना. नेक्स्ट, लास्ट में हम जैसे कि एक ऑनगोइंग साइकिल होती है कि हम इवेलुएट करेंगे कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं. अगर नहीं है तो फिर हम दोबारा उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको इवेलुएट करेंगे. वो भी नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट सोचेंगे. सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम. ये एक ऑनगोइंग सर्कल है जिसको आपको फिनिश करना है. कब? जब आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आपको एक उसका सटीक सॉल्यूशन मिल जाएगा. आपको वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने के बाद जब आप एक पर्टिकुलर ऐसा एक सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को एक्चुअली एड्रेस कर रहा है, पॉइंट पे जाके हिट कर रहा है, देन आप अपनी
स्ट्रैटेजी में कामयाब हो जाएंगे। तो लास्ट का पॉइंट हमें कहता है कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो सॉल्यूशन बनाया है अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, वो हम उसको इवेल्युएट करें कि सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। एंड अगर नहीं हो रहा है तो उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस अगर हम ला सकते हैं तो वो हम पहले ही अर्लियर स्टेजेस पे ले आए, जिससे कि हमारा एट लास्ट जो हमने गोल आइडेंटिफाई करा है वो हमारा फुलफिल हो सके। तो दिस वाज द 5 स्टेप्स जो हम जनरली अडॉप्ट करते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इफेक्टिवली इतना नहीं कामयाब हो पाते। तो रीजंस क्या है इसके? तो सम ऑफ द रीजंस है, आपको एक मतलब एक मेथड बनाना पड़ेगा, एक मेथोडोलिकल फॉर्म में चलना पड़ेगा। अगर आपने मेथोडिकल फॉर्म में आप नहीं चले, कुछ भी, जैसे आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि ठीक है मैंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया है, फिर मैंने उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देखे हैं, मैंने उसमें से बेस्ट निकाला है, फिर उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, फिर उसको मैंने इवेलुएट किया है। आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे। ऐसे नहीं अच्छा ठीक है ये तो मैंने देख लिया, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फॉलो द होल प्रोसेस। उसका रूट कॉज जानने के बाद आप उस पर वर्क करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सॉल्व होगी। लैक ऑफ कमिटमेंट, जैसा मैंने बताया कि बोल तो देते हैं कि हाँ ये करेंगे इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट करते कुछ भी नहीं। तो लैक ऑफ कमिटमेंट, एक प्रॉपर कमिटमेंट, यू हैव टू बी अ पैशनेट एंड डेडिकेट अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। थर्ड इज द प्रॉब्लम, आपने अपनी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, आपने उसका रूट कॉज ही नहीं जाना कि यार एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम थी क्या। आप सॉल्यूशन कुछ और ही ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम आपकी कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही है। तो एक सिमेट्री होनी चाहिए। देन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द टेक्निक्स एंड प्रोसेस। आपको जैसा अभी बच्चों को स्टार्टिंग में जब हमारे सीनियर्स ने सीए करा था तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इतने लोग नहीं थे गाइड करने के लिए कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। बट नाउ अडेज ICI is providing each and every platform to all of you, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, आप वहां से सॉल्यूशंस पा सकते हैं, और आपके पास इतने रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं जो आपको टीच कर सकते हैं, who themselves are chartered accountants। तो आप एक सीए से पढ़ाई कर रहे हैं सीए बनने के लिए, या अदर देन दोज हु आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज, उनसे आप पढ़ रहे हैं, तो दे आर एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम्स। तो आपके पास वो पॉसिबल रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हम पे नहीं थी या जो हमारे सीनियर्स पे नहीं थी। सो यू आर गेटिंग दोज टेक्निक्स, आप स्ट्रेटेजीज प्रोसेस आपको मिल रही हैं समझने को, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ, आप प्रॉब्लम समझ ली पर आपको यूज करना भी आना चाहिए। इनेबिलिटी, मैंने समझा दिया, सेशन ले लिया, आपने समझ लिया, फिर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप अनेबल हो, यू आर अनेबल टू सॉल्व दैट। आपको उस पर गौर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल have to then only you will be able to understand what exactly the strategy is। then उसके बाद अगर आपने कोई इनअप्रोप्रिएट मेथड चूज कर लिया तो भी आपका काम नहीं बनेगा। इनसफिशिएंट और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मतलब आपने सॉल्यूशन निकाल लिया कि ठीक है ऐसा ऐसा कर लेंगे, कीवर्ड्स याद कर लेंगे, और आपने कोई गलत बुक उठा ली, कोई ऐसा रेफरेंस उठा लिया जो आपके आंसर को हिट ही नहीं कर रहा, तो वो अगेन अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आपको ऐसी कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी नहीं उठानी। देन एट्थ में इनएबिलिटी टू कंबाइन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। आपको दोनों पर्सपेक्टिव में सोचना है, एनालिटिकली भी एंड क्रिएटिवली भी, कि ठीक है मैं अपने दिमाग में तो सोच रहा हूँ ऐसा करूंगा ऐसा, पर वो क्या वाकई में पॉसिबल है? वो जो चेंजेस हैं, जो ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, जो मैं करूंगा, जो मैं अडॉप्ट करूंगा अपनी लाइफस्टाइल में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्या वो वाकई में पॉसिबल है? सो दिस वी नीड टू थिंक। देन फेलियर टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मैंने अभी वर्ड यूज किया था इम्प्लीमेंटेशन, अब मैं दोबारा वर्ड यूज कर रही हूँ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इफेक्टिव मीन्स कि इम्प्लीमेंटेशन एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग के विद इन होना चाहिए। कर लेंगे, हाँ पक्का करूंगा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल करूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम को ध्यान दूंगा, मैं अपनी लॉ पे आंसर्स लिखने की टेक्निक्स को सुधारूंगा, मैं क्वेश्चंस को एसएफएम को क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। पर कब करोगे? यू हैव टू मेक अ प्लान, और कितने टाइम में आप वो कर लोगे, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि ठीक है, एक डेडलाइन बनानी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो इफेक्टिव कर रहे हो, उसमें टाइम का वेस्टेज नहीं हो रहा है।
आपने अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। देन द मैजिक फैक्टर फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज योर एटीट्यूड। तो अगेन वही बात आती है कि अगर आपकी प्रॉब्लम की तरफ आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा एक प्रॉब्लम की तरफ, तभी आप उसको एड्रेस कर पाएंगे, उसको पॉजिटिव वे में रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक पानी का ग्लास है जो कि जिसमें पानी डाल के रखा हुआ है। तो अगर हम दो डिफरेंट लोगों से पूछें, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों से पूछें, तो एक से पूछें कि ये क्या है, तो वो बोलेगा ये आधा पानी का गिलास खाली है, तो उसका नेगेटिव अप्रोच। एंड एक से पूछे हम कि नहीं ये पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव अप्रोच। और ऐसा नहीं है कि ये दो ही तरीके हैं, नहीं, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कुछ भी ओपिनियन हो सकती। कुछ कुछ लोग अलग नजरिए से सोचते हैं, मे बी दे आर वेरी मच क्रिएटिव। द पॉइंट इज, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद द करेक्ट एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत सही होना चाहिए। देन एक मैसेज है कि प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी अपॉर्चुनिटीज एज दे अलाउ टू सी द थिंग्स डिफरेंटली। आप प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम कंसीडर ना करें, इट मे टर्न आउट टू बी एन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू अगर आप उन्हें अलग नजरिए से देखेंगे। एंड टू डू द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, उसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होता है, देन इट डजंट मीन द एंड ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ योर ongoing path. It means it is opening the different possible outcomes for you, possible options for you to go in that. So this was the end of the slides from my side for problem solving topic. And if you have any query, any doubt, you can connect me on the given number, on the given email id. आपको कुछ भी डाउट हो related to your subjects, related to your any problem कि आप वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या आपको टाइम मैनेजमेंट में कुछ इश्यू आ रहा है, यू कैन कनेक्ट मी एट एनी टाइम। आई एम अवेलेबल टू ऑल द सीए स्टूडेंट्स एंड आई विल लव टू एंटरटेन देम विद देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस। अगर मैं हेल्प कर पाई तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल महसूस करूंगी। So thank you so much for the first half of the session for the topic problem solving skills. Now I think I would like to take the permission from the respected Gyati ma'am. Can we move to the further session ahead, or we need to have some break or something else? No, ma'am, we can proceed with the next leg of the session. Okay. So I think I'm good to go with the next session. So I'm just opening my slides. ओके, तो हमारा अगला सेशन है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि मैम एग्जाम्स आ गए, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा। एज यू ऑल नो कि सीए का जो करिकुलम का कोर्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो एक बैलेंस बनाने के बीच में कि हमको ऑडिट को भी टाइम देना है, लॉ को भी देना है, सब्जेक्ट्स अदर जो सब्जेक्ट्स हैं एसएफएम को भी देना है, एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, सबको टाइम देना है। तो कुछ ऐसा हम टाइम मैनेजमेंट बनाएं कि हम कोई सब्जेक्ट्स हमें ऐसा नहीं हो कि हम किसी में बहुत अच्छा स्कोर करें और किसी में हम पास नहीं हो पाए, तो वो भी कोई फायदा नहीं है, आपका ग्रुप क्लियर नहीं होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में रह के काम करना, ये एक ब्रॉड वे में टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ। सेकंड, आप एग्जाम में बैठने जाते हैं तब कुछ बच्चे बोलते हैं अरे मैम पेपर इतना लेंदी था, पेपर ही छूट गया, हम क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर पाए, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाए, आता था तब भी छूट गया। तो अगेन वहां पे किसका रोल आता है? टाइम मैनेजमेंट। कि जरूर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी या प्रैक्टिस करी होगी तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए कि कितना टाइम आपको किस क्वेश्चन को लिखने में देना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? टाइम मैनेजमेंट refers to the managing the time effectively so that right time is allocated to the right activity. जो सही टाइम है वो सही एक्टिविटी में एलोकेट हो। मतलब
हमारा टाइम, यू ऑल नो टाइम इज मनी। तो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारा राइट जगह राइट काम के लिए हमारा टाइम जा रहा है, देन इट्स गुड। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो हमको टाइम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि क्या चीज हमारे लिए ज्यादा टाइम मांग रही है, अभी क्या प्रायोरिटी है हमारे लिए। अभी फैमिली ज्यादा है, फंक्शंस ज्यादा है, सोशल मीडिया ज्यादा है, या पढ़ना ज्यादा जरूरी। वी हैव टू एलोकेट द टाइम एज पर द नीड्स, एज पर द प्रायोरिटी। व्हाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट? भाई जरूरत क्या है टाइम? तो क्या जरूरत है? हमको टाइम को बचाना है, सेव करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना। जैसा ज्ञाति मैम ने स्टार्टिंग में बोला था, जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। हमें एट द 11th आवर कोई भी चीज भाग के जल्दी से करना या फिर हसल बसल बिल्कुल नहीं होती है। आप अपनी स्मूथली काम को, जो भी काम होता है उसको कंप्लीट करते हैं, अचीव करते हैं। थर्ड, फंक्शन इफेक्टिवली। आप कोई भी चीज को सीक्वेंस में इफेक्टिवली विद प्रॉपर स्टेप्स आप उसको एड्रेस करते हैं। फोर्थ, टू इंक्रीज आवर वर्क आउटपुट। डेफिनेटली अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका आउटपुट हमेशा इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, इफ यू अडॉप्ट द टाइम मैनेजमेंट इन अ करेक्ट मैनर। लास्ट, टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप सीए बन जाते हैं, आप बाद में जॉब के लिए भी जाते हैं, तब भी आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट का रोल आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपकी डेली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एकेडमिक्स लाइफ में, जॉब लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सब जगह इसका रोल है। अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, एवरीथिंग विल बी मिसमैनेज्ड एंड वो कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे, या कुछ ज्यादा अच्छा कर लोगे तो कुछ बिल्कुल बेकार हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस। सॉरी। हम कैसे टाइम को इफेक्टिवली यूज करें? मैम आपने ये तो बता दिया कि टाइम मनी है, टाइम को यूज करना चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर हम यूज कैसे करें, इफेक्टिवली उसका यूज कैसे करें? आपको प्लानिंग करनी है। जैसा कि मैं सब हर बार बोलती हूँ कि एक प्लानिंग के बिना, हर चीज को हम करने के पहले उसको प्लान करते हैं, उसकी पाथवे बनाते हैं। तो हमको पहले एक इफेक्टिव प्लानिंग करनी है, कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं कि क्या क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम रख सकते हैं, कुछ डेडलाइंस डिफाइन करनी है कि ठीक है इस काम को मैं इतना ही समय दूंगा। मैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अदर सब्जेक्ट्स बेकार कर, नो। या एक क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा है तो मैं उसी में लगा रहा हूँ, ढूंढता रहा हूँ, अरे अरे याद नहीं आ रहा, अरे क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। नहीं, जो आ रहा है वो पहले करो, जो आ रहा है वो करो, उसको स्टार्ट करो, उससे लिखो। और मैं तो ऑलवेज, देयर इज अ टिप फ्रॉम माय साइड कि अगर आपको पूरे पेपर में जो अच्छे से आता है उससे आप पेपर स्टार्ट करो, तो जो एग्जामिनर होता है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि वाह यार बच्चा बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है, तो वो खुश हो जाता है कि ठीक है बहुत अच्छा लिखा है बच्चा। तो जस्ट कीप योर आंसर्स, जो बाद में आपको लगता है कि नहीं 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 आते इतने अच्छे से, तो उनको बाद के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर डेलीगेट कर पाते हैं। आप अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कीजिए, किसको हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस सब्जेक्ट को कैसे रखना है, वो आप ही जानते हैं। कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिए, और उसके बाद राइट टाइम को राइट एक्टिविटी में डालिए। फिर देखिए आपको कैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, कैसे आप इतना बड़ा कोर्स अचीव नहीं कर पाते विद इन द गिवन टाइम ब्रैकेट। आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होती है? कॉस्ट योर टाइम। आप एक्टिविटी के लॉग्स बनाइए कि आपने क्या क्या किया, आप गोल सेट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, एंड लास्ट में शेड्यूलिंग कीजिए। तो लॉग्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप एस्टिमेट एक टाइम बनाएंगे कि ठीक है मैंने इतना इतना टाइम इस जॉब में मैंने डाला, और जो क्रिटिकल एरियाज है वो क्या है कि यार मैंने इसको तो कम टाइम मिलना चाहिए था और फिर भी मैंने इस पे ज्यादा टाइम लगाया। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है कि नहीं ये टॉपिक इतना टाइम मांगता ही नहीं था, ये तो फट से रिवाइज हो जाना चाहिए था, फिर मैंने इसमें ज्यादा टाइम लगाया। तो उन क्रिटिकल एरियाज को आप डिफाइन कीजिए, और आप हाई यील्डिंग टाइम निकालिए कि मैं प्रॉपर कितना टाइम ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ दिन में, कितना वेस्ट ना करूं, मैक्सिमम इफेक्टिव टाइम दे सकता हूँ। गोल सेटिंग। आप लाइफ टाइम के गोल सेटअप कर सकते हैं, सिर्फ सीए में ही नहीं। मैंने जैसा बोला टाइम मैनेजमेंट में ओवरऑल काम में आता है, तो आप अपनी करियर पाथ, अपने लाइफ गोल्स को शेड्यूल कीजिए। आपने
गोल्स जो है उसको ब्रेक कीजिए। जैसे लाइफ के लिए लाइफ टाइम गोल्स हो गए, सीए क्रैक करने के लिए सीए के गोल्स हो गए कि ठीक है मुझे अभी एक ग्रुप देना है, 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, मुझे इन पे फोकस करना है, इनमें भी कितने कितने टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एबीसी कैटेगरी में डालना है, और फिर मुझे अपने अकॉर्डिंग चीजें प्रायोरिटाइज करनी है। रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवाइज, एंड अपडेट योर लिस्ट ऑन डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मैंने पहले ये सोचा था कि ठीक है मैं एसएफएम में ज्यादा टाइम दूंगा, मेरा वीक सब्जेक्ट है, और फिर मेरे को लगने लगा कुछ दिनों बाद कि नहीं मेरा तो इससे भी कम टाइम में मेरी पकड़ आ गई है, मेरी ग्रिप बन गई है सब्जेक्ट पे, तो अब मैं अगर इसका थोड़ा सा टाइम उठा के ऑडिट में शिफ्ट कर देता हूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो आप वो करिए। आप रिवाइज कर सकते हैं अपने प्लान्स को टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, तो आप रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्लान को ड्रॉ करेंगे कि हमें भाई कैसे करना है, काम कैसे करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, तो क्या क्या गोल्स मुझे अचीव करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रायोरिटाइज। आपने टू डू लिस्ट बना ली कि ये मुझे करना है, पर कंसीडर द वैल्यू ऑफ टास्क बिफोर टू डू इट। आप पहले अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करा तो आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इंस्टाग्राम ज्यादा टाइम डिमांड करता है मेरे सब्जेक्ट से, तो आप वहां पे टाइम दीजिए। पर नहीं, आपको लगता है नहीं इस समय मेरा प्रायोरिटाइज में अपना जजमेंट यूज करके मैं अपनी सीए की पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन देता हूँ, तो आप फिर उसको करें। तो जो चीज आपको बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं इसको मुझे ज्यादा टाइम देना है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इसके अकॉर्डिंग आप एक लेवल ऑफ हायरार्की सेट करें सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में, जिससे आपको हेल्प मिले, जिससे आपको ज्यादा वेटेज के टॉपिक्स आप पहले ले लीजिए कि ठीक है ये हर बार आते ही हैं, ये क्वेश्चंस हर बार आईसीआई पूछता ही है, कुछ ट्रेंड्स वर्क पेपर से हमने उठा के देखा कि ठीक है ये क्वेश्चन तो यार 3-4 बार से रिपीट हो चुका है, उसको आप ज्यादा रिवाइज करिए। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल, जैसा कि मैंने बोला आपको हर एक चीज का शेड्यूल बनाना है कि आप कितना कर पाएंगे। ये मैंने प्लान तो बना लिया, पर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट कि मैं कितना कर पाऊंगा, क्या अपने बेस्ट अवेलेबल टाइम का कितना मैं यूज कर पाऊंगा, कितनी अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो जाती है जैसे कि कुछ कारण से एग्जाम में डिले हो गया या कुछ हॉलीडे मेरी कम हो गई, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द अनसर्टेनिटी। एक दिन पहले मैं एग्जाम के मैंने प्लान बनाया था, ठीक है मैं टाइम मैनेज कर लूंगा, मैं ऐसे जाके पढ़ाई कर लूंगा, आपको फीवर आ गया, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको सब कुछ दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि अच्छा मैंने ये सोचा था मैं सुबह उठ के टॉपिक रिवाइज कर लूंगा, अब मैं एग्जाम में लेट हो गया, मैं उठ ही नहीं पाया, मेरे को नींद नहीं खुली मेरी, आपका टाइम मिसमैनेज हो गया। तो आपको वो एक मार्जिन टाइम फॉर एनी अनसर्टेन कंटिजेंसी और एनी अनसर्टेनिटी के लिए आपको वो निकाल के रखना। ओके, एंड बाय गिविंग योर फुल कमिटमेंट। अगर आप अपना टाइम सही लगाएंगे, सही जगह पे सही काम में लगाएंगे, आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आप अपने खुद के जज बनिए, खुद के मोटिवेटर बनिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्लाइड में तो बाद में लिखा है, पहले मैं आप लोगों से बोलूंगी और आप लोगों को भी ये सेशंस आप लोग अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर इन सेशन से सुनने से ज्यादा यू आर योर ओन जज। आपको सबको खुद को पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी कितनी तैयारी है, कितना कोर्स मैं कर चुका हूँ। इवन मैं ये मानती हूँ कि जब बच्चा पेपर दे के बाहर आता है एग्जामिनेशन हॉल के, तो उसको पता रहता है कि मेरी इसमें एग्जामिशन आएगी या मैं फेल हूँ या पास हूँ। आई एम डेम 100% श्योर फॉर दिस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको अपने रिजल्ट का अंदाजा नहीं हो। हाँ, इन सर्टेन केसेस उसे लगता है कि हाँ यार 3-4 नंबर हो सकता है शायद कि नहीं एग्जाम हो पाए या कुछ, वो आके पूरा कैलकुलेशन भी करता है, बट स्टिल उसको ये आइडिया रहता है पास फेल का, कि मैं बिल्कुल तैयारी करके नहीं गया था या मैं करके गया था, एक्सेप्ट टू सम सर्टेन कंडीशंस। कुछ अगर बिल्कुल ही एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो तो करोगे उसका। यस सर। चलो मैं बुला लूंगा आपको। हेलो, आप बोल रहे हैं सर कुछ? अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो। Richa, you can continue. You can continue. Okay. So lastly I'm saying that last slide was achieve your
goals. तो आपको अपने goals को अगर अचीव करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है. Then use your time wisely. अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत वाइजली, जैसे आप अगर वंस यू विल बिकम अ सीए यू हैव टू साइन ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, दैट शुड आल्सो बी डन वाइजली. आपको वहां अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली आपको अपना टाइम यूज करने के लिए भी बहुत वाइज रहना पड़ेगा. तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने जो कोट्स दिए कि मेक यूज ऑफ टाइम, लेट नॉट एडवांटेज स्लिप. आप अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी कह के गए हैं कि एक जो बहुत फेमस एक जो कोट है, एक प्रोवर्ब है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब. सो व्हाट डज इट मीन कि आप कल पे मत टालिए. डोंट डिफर योर प्लान्स, डू राइट नाउ. आपने अगर सोचा है ठीक है मैं इस कंप्लीट टॉपिक को आज कंप्लीट करूंगा तो जस्ट डू इट. आपने प्लान में ले लिया ना उसको, आपने प्लान बना लिया तो आप उसको आज करिए. ये नहीं आपने उसको डेफर कर दिया, ठीक है मैं कल करूंगा, नहीं मैं इसको परसों कर लूंगा. फिर वो धीरे 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 बैकलॉग होता जाता है, इकट्ठा होता होता वो बैकलॉग होता जाता है और आप कभी कर ही नहीं पाते, वो पेंडिंग होता जाता है. ऐसे आजकल मैं एक जनरल बात बताऊंगी, कुछ बच्चे जो पेनड्राइव क्लासेस प्रेफर करते हैं, मैं पर्सनली बता रही हूँ, हम पूरी क्लास एक दिन में कभी कभी नहीं देख पाते तो हम सोचते हैं ठीक है ये नेक्स्ट डे देख लेंगे, ठीक है नेक्स्ट डे देख लेंगे. और फिर एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो यही होती है लास्ट में कि पेपर आने वाले होते हैं और हम अपनी क्लासेस ही खत्म नहीं कर पाते. अरे 5 क्लासेस और बची हैं वो देख लेता हूँ, अरे 6 क्लासेस, अरे जो देख लिया उसको तो रिवाइज कर लो, उन टॉपिक्स को तो अच्छे से रिवाइज कर लो जो देख चुके हो आप. ना कि नया पढ़ने से अच्छा है कि आप उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर लो. ये ऐसा मेरा मानना है. तो अगर आप कुछ भी मैनेज नहीं करते हैं तो आपकी सिचुएशन बहुत ऑड हो जाएगी, सब कुछ मिसमैनेज हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर चीजें ओवरलोड होने लग जाती हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट हो जाता है. और अगर आप स्लोली अपना टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप चीजों को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चलते हैं तो लास्ट मिनट आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, कोर्स नहीं हो पाया, याद नहीं कर पाए, इतना बचा है, ये टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए, ये सब नहीं होगा. आपको पहले दिन से टाइम मैनेज करना पड़ेगा. जो लास्ट मिनट स्टडी के लिए बैठते हैं ना, वो फिर उनका भगवान ही मालिक है, टू बी ऑनेस्ट. तो आपको पहले दिन से चीजों को ABC कैटेगरी में डाल के एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि मुझे इस प्लान के अकॉर्डिंग चल के ये अचीव करना है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माय सेशन. मैनेज योर टाइम एंड कीप स्माइलिंग. यही एक सूत्र है आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने का और उसके बनने के बाद आगे प्रोग्रेस करने का, सक्सेसफुल होने का. यही एकमात्र सूत्र है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें, हार्ड वर्क करें, डेडिकेट रहें अपने वर्क या अपने स्टडीज के ऊपर, एंड उसको फॉलो अगर आप करते जाएंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स, you will reach to your destination. So I think thank you so much. That's all from my side for time management and problem solving skills. Now I request the students कि किसी के कुछ doubt हो तो we are keeping this 15 minutes doubt session so that मैं इनके questions को address कर पाऊँ, and I will again love to address all your questions. Thank you. Anyone, student, If any student want, they can unmute themselves and ask to Richa ma'am directly. I think Abhidya Gupta, Kushika Bhalla, and someone from Motorola. So if you want to ask anything from me. Hello. Hello. Yeah. Who's this? Hello. I think no one wants to ask. Everyone is sorted. Yeah. Really well that their queries got answered during the session itself. It's okay, Gyati ma'am. I think the session has already defined and given their answers. So yeah, it's okay.
So I request Nikhil sir to please give a formal vote of thanks to ma'am. Am I audible? Yes. sir. Yes. Esteemed guests, faculty members, and dear students. As we have come to the close of this enriching program, it is my honor to deliver the vote of thanks on behalf of all of us here today. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our learned speaker, Richa Mandelia ji, who has shared her valuable insights and experiences with us. Ma'am, as you rightly said, that the most important step in solving a problem is identifying the core problem. Also, as you said, that we should be judging our own position truthfully in order to plan effectively. This is the most important aspect. Your knowledge not only enlightened us, but has also inspired to aim higher in our journeys, particularly as chartered accountants of future. A special mention also goes to the organizing committee and to CA Gyati Gupta ji, who has very impressively moderated the whole session. Special thanks to the entire CIRC team, especially CA Rajiv Gupta sir, for your support and guidance. Your commitment to nurturing the future of next generation of accountants is truly commendable. We are lucky to have you as our mentor, sir. I would also like to acknowledge the participation of all the students. May we continue to grow, support each other, and strive for excellence in our respective paths. Thank you all once again, and I wish you all the very best in your future endeavors. Thank you. Thank you, Nikhil ji. Thank you, Richa ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, Gyati ji. Ma'am, should I close? Sir, I just want to ask, like, when I can get the session recording of the session. I just confirming from CRC side. And later on, call to you. Okay. Thank you, everyone. Thank you everyone.